ویلیو رکھتی ہیں؟ کیا زیادہ ویلیو رکھتی ہیں یا آپ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں؟ جس کی زندگی میں کوئی داغ دبا جری نہ تھی، کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا، وہ آپ کے لیے، میری بہن آپ کے لیے، اس نے سب لعنتوں کا برداشت کیا۔ وہ کہتا ہے باپ یہ ہو سکے تو پیالہ ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ یہ پیالہ وہ موت کا نہیں کہہ رہا تھا، وہ پیالہ یہ کہہ رہا تھا آپ کی ناپاکیوں کا، آپ کی تمام بری عادات و حرکات کا۔ وہ پیالہ نہیں، وہ کہتا ہے میں ان سے واقف نہیں، پر وہ جب آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے میری جان اس کو پیاری ہے، مجھے پتہ نہیں یہ کیا ناپاکیاں ہیں، یہ زنا کیا ہے، یہ بدکاری کیا ہے۔ وہ آپ کے لیے وہ پیالہ پی گیا۔ آپ اس کے لیے آپ کی انا نہیں چھوڑ سکتے، اپنی ویلیو، اپنا مقام، اپنا مرتبہ نہیں چھوڑ سکتے، جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا آپ کے لیے۔ وہ انسان بن گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے آپ کے لیے جان دے دی مگر مجھ سے کچھ نہ کہا۔ آپ جیسے بھی تھے، اب اس نے گناہوں کی وہ دستاویز جو آپ کے نام پر لکھی تھی، حرام کار ہے، یہ خونی ہے، بدکار ہے، یہ بد چلن ہے، آپ کی وہ جو دستاویز آپ کے جسم پر لکھی ہوئی تھی اس کو کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اب آپ کے جو تختی آپ کے اوپر لکھی، سنیے گا آپ کے اوپر کیا لکھا تھا، بدکار ہیں، خونی ہیں، زناکار ہیں، بت پرست ہیں، اور گالیاں بکنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں۔ اس نے جب آپ نے اسے قبول کر لیا تو وہ جو گناہوں کی دستاویز تھی وہ سامنے سے ہٹا دیا اور ان کا برملا تماشا اڑایا۔ اب دستاویز نہیں آتی نظر، اس نے ہٹا دیا ہے، پر آپ اس بدی سے ہٹ نہیں رہے، آپ اپنے برے رویے سے نہیں ہٹ رہے۔ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑتا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے ہی واسطے پڑا ہے، وہ تو ہلاکت کا فرزند ہے ابلیس۔ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے واسطے پڑا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ایسا ہی ہے، لکھا ہے ہلاک ہونے والوں کے واسطے پڑا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ بے ایمانوں کو لفظ سیدھا سیدھا بے ایمان بھی کہہ سکنے ہیں، پنجابی دا لفظ ہے اور بڑا بے ایمان ہے۔ جب امان پر قائم نہ رہے، لکھا ہے گناہ میں زندگی گزارنے والے گناہگار شخص کلیسیا کا ممبر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر گناہ میں جو زندگی گزارتا ہے، مسیح کی کلیسیا کا، ہماری پاکستانی یا ہماری جو دنیا میں رہتے ہوئے ہیں اس کا تو ممبر ہم بن جاتے ہیں، لیکن مسیح کی کلیسیا کو، جو جلالی کلیسیا ہے، جس کو یسوع مسیح لینے آنے کو ہے، بہت جلدی یسوع مسیح آنے والے ہیں، اس کلیسیا کے آپ ممبر بھی نہیں بن سکتے گناہ میں اگر زندگی گزارتے ہیں۔ سنیے گا، لکھا ہے جیسا کہ خداوند نے خود فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا۔ غلام جو ہے اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، اس کا اپنا اختیار نہیں، بلکہ جس نے اسے خریدا ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ خداوند کے لوگوں، گناہ میں زندگی گزارنے والوں سے اس نے کہا، میں فرمایا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے کیا کرتے جی؟ خدا تمہارا باپ ہوتا تم مجھ سے کیا کرتے؟ محبت رکھتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ اپنا گیٹ اپ، اپنا سٹائل، اپنا لائف سٹائل تمام دنیا جیسا۔ پھر لکھا ہے آگے، خداوند کے لوگوں، مقدس پالوس کرنتھس کے پہلے خط میں کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے،
अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त हो, क्या कहता है, अगर कोई भाई कहलाकर, मैं ते हुण तौबा कर लिए भाई बन गया है, मैं भैन बन गई हाँ, बाहरों तो भैन अंदर डैन है, बहनों तो बड़ी सोहनी लग शक्ल सूरत खुदा ने दी हुई, बड़ी चमक चमक के, लेकिन अंदर अबलीस आपके जड़े काट रहा है, वो गुराना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को, बाहर तो भाई नजर आ रहा है, अंदर कुछ और ही नजर आ रहा है, जड़ा अबलीस दियां चालां ते चल रहा। लिखा है मुकद्दस पौलुस कह रहा उन्होंने करंथस दी कलीसिया नू, अगर कोई भाई कहलाकर रामकार या लालची या बुत परस्त या गालियां देने वाला या शराबी या जालिम हो, क्या है जी, अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार लालची करे, लालच करन की करिए, पेट लगा भाई जी बच्चों लिए करने केड़ा, लिखा है रामकार भी लालच दे, वो कोई फर्क नहीं, कलाम तो किसी तरफदारी नहीं करता, मेरे लिए भी होना ही है। लिखा है लालची या बुत परस्त या गालियां देने वाला या शराबी या जालिम हो, उससे सोबत ना रखो। क्या करो जी, सोबत का मतलब क्या है, दोस्ती, फेलोशिप, याराना, उससे दोस्ती भी ना रखो है। बाइबल की 10 सख्त असूल मुकद्दस पौलुस ने करंथस दी कलीसिया नूं सुनाया। ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਥਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ कहलांदा है तो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, और फिर अगली गल कह रहा है शराबी और जालिम नहीं होना चाहिए। अगली गल बड़ी खूबसूरत कह रहा है कि बल्कि ऐसों के साथ खाना तक ना खाओ। ऐसों के साथ कहने हूँ भरा छड़ दी है, कोई गल नहीं, हूँ वो वैल तो नहीं छड्डदा तो मैं भरा तो नहीं छड्ड सकदा, हूँ मैं अपनी भैन तो नहीं छड्ड सकदी क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम है वो नाल ने, मेरा वह रिश्ता तो हूँ खुदा माँ, मेरी माँ चो मेरे बाप चो पैदा हुई है, उन्होंने मैं नहीं छड्ड सकदी। आप नसीहत करने के लिए उससे जुदा हो जाए, आपकी शायद नसीहत और तरबियत उसकी बरकत का बाइस बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है मुकाशवा की किताब में लिखा है कि परगमन की कलीसिया को खुदावंद फरमाते हैं, लिखा है मैं जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उससे लड़ूंगा, और थेवातैरा की कलीसिया से खुदावंद को शिकायत है कि उसने एक हरामकार औरत इजबल को कलीसिया के अंदर रहने दिया। खुदा को शिकायत है, हरामकार औरत थी कलीसिया में, उन्होंने रह दिया, खुदा कहता मैनू शिकायत है, शिकवा है, तो जितना शिकवा है उन्होंने बुलाना नहीं चाहते हैं, यार मेरा दिल नहीं करता उन्होंने बुलाने है, शिकवा हो कि ना सामने आ जाए बोलते पे पर ढिडों खुश नहीं होंगे, एवं ही है ना जी, ना ढिडों खुश तो ना ही मूँह ते चंगी मुस्कुराहट होंगी है। क्यों भैनों इवें गल है, मैं ठीक कह रहा, क्यों बच्चों हैं, आप खुदा के बच्चे हैं, आप खुदा की बेटियां हैं, आज आपको नसीहती कलाम है, तरबीयती कलाम है। लिखा है कि फिर उन कलीसियों के बाज लोग जो थे वो बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाते थे, हरामकारी करते थे, मगर खुदावंद उन्हें कलीसिया में रखना नहीं चाहता, खुदा उनको कलीसिया में नहीं रखना चाहता।
उसने फरमाया अगर उसके से काम है तो तौबा कर, और मुसीबत वरना दरवाजे पर है। कहता मैं उसके फर्जंदों को जान से मार डालूंगा और सब कलीसियों को मालूम होगा कि कर दूं, और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं। क्या कहता है? बाइबल मुकद्दस की बड़ी ठोस तालीम है। ठोकर खिलाने वाली चीजों को और उन अज़ा को जो बदन में रहकर ठोकर खिलाते हैं, उनको कहता अपने से दूर कर दो। सुनिएगा, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते। किनके वास्ते? हलाक होने वालों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने क्या कर दिया? किसने अंधा किया है? बुरा काम करते हैं तो आप करते हैं, जहां का खुदा, जिस तरह वो यहूदा अक्सर युती में आके समा गया, जिस तरह वो और लोगों में समा कर काम करता रहा। आप देखें, अबलीस की बात आज से कोशिश करें। खुशखबरी क्या है? अंजील मुकद्दस। अगर आपकी ज़िंदगी में अंजील पूरी नहीं हो रही, आप चलती फिरती अंजील नहीं मेरी बहन बन रही, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा मेरे भाई, अगर आप चलती फिरती अंजील नहीं बन रहे तो फिर आपकी ज़िंदगी बेमकसद और बेफ़ायदा है। आपकी ज़िंदगी में अंजील नज़र आनी चाहिए, खुशखबरी नज़र आनी चाहिए। असी दिलों ना चाहते ते दंद कट के दस देने ही बड़े खुश हाँ, ते दूर ही हैं इधरों करके ते वो अजकल का नवा रिवाज है, मूँह चुम लैणगे ते पूरे परे मूँह करके खा, शायद वो नक चढ़ांदियां होण एक दूसरे तो। अपना रवैया मसीहियों जैसा करना है, मुकद्दसों जैसा। आप जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हों, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हों। कोई आपके साथ अगर ज्यादती करता है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें। लिखा ना, जान देने तक वफादार रहो तो मैं क्यों भाइयों की लिखा है? जिंदगी का ताज लेने के लिए क्या करना है? जान देने तक, जान देने तक क्या करना है? वफादार रहना है। और फिर क्या लिखा है? अमान के बानी कामल करने वाले यीशु को क्या लिखा है? हाँ जी, गुड। गौर ना, जिहड़ी चीज गौर ना देखी जाती है ना, कशिश पैदा कर दी है। यीशु मसीह ने गौर ना देखना है, और जब गौर से देखेंगे आप लुत्फअंदोज होंगे। आखिरी बात करूंगा, और आखिरी बात करके इस कलाम को क्लोज करूंगा। आप जब दुआ करते हैं अक्सर आपको दुनिया की फिक्रें आदब आती हैं, ख्यालात दुआ के दौरान अक्सर कम नजर आएंगे, फलाना काम नहीं रह गया, दफ्तर के काम नजर आएंगे, घर के काम, बच्चों दी जरूरियात दुआ च नजर आंदियां ने, ख्याल बिखर जाते हैं। सुनिएगा, जब आप दुआ करते हैं यीशु मसीह को सामने खड़ा करें। कहते हैं खुदावंद तू मौजूद है। जब वो कहते हैं तू मौजूद है तो उसको सामना खड़ा करें और दुआ करें, और गौर से उसको देखना है। और सामने जिसको बात सुनाई जाती है ना, यकीन होता है किसने सुन ली है, ये मेरा मसला हल हो जाएगा। आप दुनिया को जिसको अपना मसला बता, आपका भाई हो या आपकी बहन हो या आपका कोई भी रिश्ता किसी के साथ है, जब वो जो सामने होता है उसको बात बताई जाती है, कहते हैं कि ये अगर 100% मेरी गल नहीं ना इतने अमल करेगा तो कोई 70% मेरी गल सुनेगा, क्योंकि मेरे ना मोहब्बत करता, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा शोहर है, मेरी बीवी है। और जब सामने होगा ये दुनिया के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे।
ये ज़मीनी रिश्ते हैं, लेकिन आसमान पर जो हमारा उत्तम और अब तक कायम रहने वाला रिश्ता है, उसको जब हम सामने खड़ा करके दुआ करते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, जब दुआ करते हैं तो वो यकीनन 100% हमारी सुनता है और फिर हमें 100% उसका जवाब मिलता है। 100% जवाब मिलेगा क्योंकि वो सामने है और हम इस बात पर मुतमिन हो जाते हैं, मैंने जो कह दिया वो हो गया है। जिस तरह मुकद्दस हम मरकज़ की इंजील में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, जो कुछ तुमने मांगा दुआ में, जो कुछ तुमने दुआ में मांगा यकीन करो तुमको और तुमको, आमीन। बहुत कुछ है। आपकी खुशखबरी पर पर्दा नहीं होना चाहिए, आपको वाज़ेह नज़र आना चाहिए, मेरा मुकाम दुनिया नहीं, मेरा मुकाम ये बच्चों तक ही नहीं है, मेरा मुकाम आसमान तक है। लिखा, जब तेरे माँ बाप छोड़ देंगे मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा। ये रिश्ते कहाँ तक हमारे जाते हैं? सुनिएगा, रिश्ते कहाँ तक हमारे जाते हैं? पैदा होने से कहाँ तक रिश्ते जाते हैं? कब्र तक रिश्ते हैं। कोई रिश्ता नहीं कब्र के बाद, लेकिन यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो पैदा होने से आसमान की बादशाही तक है। उस रिश्ते को ज्यादा उत्तम दर्जा दें जो आपको मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता है। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।